قميصه بدم كذب قال بل ساءت سيارة فأرسلوا عوام اور اداروں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتی ہے، یا ان کے مسائل خود جو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں وہ یہیں پہ ڈائریکٹلی اس کو ریزالو کرتے یعنی حل کرتے ہیں، یا ان کو اعلیٰ حکام جو ہوتے ہیں اس کو اوپر تک پہنچاتے ہیں۔ اب جو بھی مسائل ہیں آپ بالکل کر آپ بتا سکتے بھی ہے، آپ کچھ دن دربان کے لیے دیں، ہفتے میں 2 دن یا 1 دن کہ اس دن میں آؤں گا تو آپ کو پتہ بھی چلے گا کہ یہاں کتنے مسائل ہیں اور کون کون سے مسائل ہیں۔ تو پہلی درخواست میری آپ سے ہے کہ آپ آج ہی بتا دیں کہ ہفتے میں فلانا دن میں دربان میں آؤں گا۔ اس کے بعد سر ہاسپٹل میں ہمارے کافی عرصے سے لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے، یہ بہت بڑا ایشو ہے، اور بھی دیگر حبیب سخی چیئرمین نیبرہڈ کونسل دربان لوگ ہیں جو 100% بل دینے والے ہیں، اور اس کے علاوہ سر میٹر ریڈر یہاں نہیں آتے ہیں، وہ کون جواب دے گا؟ یہ ہر کچہری میں یہ سوال میں کرتا ہوں کہ ادھر میٹر ریڈر نہیں آتے، یہ کیا یہ ظلم ہم لوگ ہی برداشت کریں گے؟ تو اس کی کوئی حد ہوتی ہے برداشت کی بھی، تو پلیز آپ مہربانی کریں ان لوگوں کو پابند کریں کہ ان کا میٹر ریڈر ہر مہینے میں آئے، میٹر ریڈنگ کرے۔ یہ تو نہیں ہے کہ اس کا مرضی ہے تکا بیچ دے، کوئی 50 یونٹ استعمال کرتے تو اس کے پیچھے 500 بیچ دیتے، کوئی 500 استعمال کرتا ہے تو اس کے اوپر 50 یونٹ بیچ دیتے۔ اچھا تیسرا مسئلہ یہ ہے سر، اگر پبلک ہیلتھ والے یہاں ہو، میرے شہر میں غیر قانونی کنیکشن کی بھرمار ہے، اور یہ سب سے بڑا مسئلہ میرے لیے بنے گا، کیوں کل لوگ مجھ سے پانی مانگتے ہیں، اس کا طریقہ کار جو ہے بالکل خراب ہو گیا۔ تو پبلک ہیلتھ والے سے بھی یہ درخواست ہے کہ یہ اپنے بندوں کو کہے کہ بھئی غیر قانونی کنیکشن کو روکو۔ میں نہیں روک سکتا ہوں، میں پبلک کا نمائندہ ہوں، میں تو نہیں جاؤں گا کہ ان کو روکوں گا، یہ اس کا فرض بنتا ہے ان کے بندے کو ہی نہیں ہے۔ اور جدھر وال خراب ہے اس کے بھی میں نے لیٹر بھی لکھا ہوا ہے، دوسرا بھی لکھ دوں گا، اس کے بھی چاہیے کہ وہ بھی اس پہ کام بھی کرے۔ تیسری بات سر یہ ہے، پٹوار خانے میں بغیر پیسے کے کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے یہ کہا ہے، جو بندہ پیسے دے گا اس کا کام ہوگا، جو بندہ پیسے نہیں دے گا اس کا کام نہیں ہوگا۔ ہم جب الیکٹڈ لوگ جاتے ہیں کسی کے ساتھ، وہ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ آپ پھر کبھی آنا، اس بندے کو کہتے ہیں کہ یار یہ تو آپ کے ساتھ ممبر صاحب آیا ہوا ہے، پیسوں کے علاوہ تو یہاں مسئلہ نہیں چلتے۔ سر میں نے کتنے پٹواریوں کو کرپشن میں پکڑا ہے، اور کتنے ایسی صاحبان کو میں نے ریٹن میں دیا ہے کہ فلانے پٹواری نے میرے فلانے بندے سے پیسے لیے، اور افسوس کہ وہ پیسے میں نے اپنے طریقے سے ریکور کیے، لیکن ایسی صاحب نے مجھے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ اور میں نے اس میں یہ بھی کہا اگر میں غلط ہوں تو میرے خلاف کارروائی آپ کریں۔ کتنے ایسی صاحبان کو میں دی، آپ سے پہلے کی بات میں کروں، آپ کے دور کی نہیں کر رہا ہوں۔ تو یہ سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہیے، آپ آئے لوگوں سے پوچھے، اور ان کا موبائل نمبر لکھا ہو کہ بھئی آپ نے ٹیکس کتنا بھرا ہے اور آپ سے پیسے کتنے لیے۔ سب سے بڑا ہمارے گورنمنٹ کو یہ لوگ نقصان دے رہے ہیں۔ پٹواری صاحب کو 50,000 دو اور 2 لاکھ گورنمنٹ کو نہ دو، کیوں بھئی نہ دو؟ یہ گورنمنٹ کے پیسے ہوں گے، ہمیں ہاسپٹل کے لیے بھی چاہیے ہوں گے اور دیگر مسائل کے لیے چاہیے گا۔ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ ٹیکس کے راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے۔ تو پلیز آپ سے درخواست ہے کہ میں ہر روز یہ چیزیں میں تھک گئے ہوں، اور یہ میرا جہاد ہے، میں اس چیز کو نہیں چھوڑوں گا۔ کوئی بندہ بھی میرے ایریے میں کرپشن کرے گا، میں اس کے اوپر ہاتھ ڈالوں گا اپنے طریقے سے۔ اگر آپ کو میرے طریقے سے اختلاف ہے تو پھر میری یہ اپیل ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو کہہ دیں کہ یہ غلط کام نہ کرے۔ تیسری بات یہ ہے سر، شو صاحب تو نئے آئے ہوئے، یہ نہیں کہ میں اس کی کہہ رہا ہوں، منشیات ادھر بالکل ایزی مل رہی ہے۔ تو میری شو صاحب سے بھی درخواست ہے اور آپ سے بھی درخواست ہے، اگر اگی میں مل رہی ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، میرا ایک بندہ ضائع ہو جائے نا تو پوری انسانیت کے لیے کتنی بڑی نقصان کی بات ہے۔ تو پلیز اس کے بھی آپ کچھ کریں۔ اس میں کی آڑ میں یہ بھی نہیں کہ ایک بندہ چرس پیتے ہے، اس کے اوپر آپ 2-3 کلو ڈال دیں، جو ڈیلر ہے اس کو پکڑے اس کے اوپر ڈالو، میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا۔ یہ اگر کوئی پروپیگنڈا بھی ہوگا، لیکن میں عوامی نمائندہ ہوں، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ جدھر کوئی سرکاری ملازم ٹھیک ہوگا، عوام غلط ہوگی، تو میں غلط لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گا، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گا۔ اور جدھر آپ لوگ غلط ہو گئے کوئی ملازم، تو میں عوام کا نمائندہ ہوں، تو میں غلطی کی اس کے لیے میں نہیں آیا ہوں۔ تو پلیز آپ سے درخواست ہے، آپ کو مسائل کا پتہ بھی ہے، تو جو ہو گیا کہ آئندہ ہمارے ساتھ یہ نہ ہو۔ شکریہ۔ بات تو حبیب بھائی نے بھی کی، بجلی کا جو مسئلہ ہے، بار بار ہم بجلی کا ہی وہ کرتے ہیں۔ تو میرا سوال اب یہ ہے کہ جو معاہدہ ایس صاحب اور ہمارے چیئرمین جناب
तहसील दरबान दिलबर खान कनौली और उनकी टीम के साथ उगी में हुआ था, जो लोड शेडिंग के बारे में कि भाई लोड शेडिंग का दुरानिया क्या है। जो उन्होंने बताया कि 4 घंटे है, इन्होंने बताया कि 6 घंटे भी कर दो, नेवर डर, कोई बात नहीं है, हम बर्दाश्त कर लेंगे। उसके बाद वो मुआहदा रिटर्न में हुआ है। उसके बाद आज दिन तक मैं देख रहा हूं कि बिजली का तो अल्लाह ही हाफिज है, 24 घंटे के बाद बिजली आती है और उसका मुआहदा किधर गया वो मेरा बस उसके बरक्स है। बस ये मेरा। और एक दूसरी बात ये, आज दिन तक किसी कचहरी में मसले तो बयान करते रहते हैं, जो अफ्ताकार होती है, जो महकमे जात करते हैं, नहीं तो वो आगे लिखते भी हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी होती है, कोई मसला नहीं है, सबको पता है, ये जो जितने लोग बैठे हैं। तो मसला ये है कि हमारे एरिया में ये जो लोड शेडिंग का हमें शेड्यूल जारी किया जाता है, इसको मैं नहीं मानता। उसकी मैं आज एक वजह और मेन एक पॉइंट बताता हूँ आप सबके सामने अपनी आवाम के तवसत से कि हमारे इलाके में फॉल्ट हर दिन फॉल्ट होता है, कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन फॉल्ट न हो। लिहाजा मेरी एसी साहब से और इनकी पूरी टीम से ये रिक्वेस्ट है कि इसको फॉल्ट एरिया डिक्लेयर किया जाए, न कि इसको शेड्यूल में डाला जाए। हमारे पास शेड्यूल में भी हम वो हैं फंसे हैं और इधर से फॉल्ट भी नहीं खत्म होता है। इसको या तो फॉल्ट एरिया डिक्लेयर किया जाए या तो हमें शेड्यूल का वो बताया जाए, एक चीज हो, दोनों को हम नहीं मानते, क्योंकि हम तो बस क्या बताएं, अभी 24 घंटे ये पिछले 2 दिन से बिजली बिल्कुल नहीं है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है जनाब एसी साहब से, मुझे उम्मीद भी है कि वो इसका हल करेंगे मसले को। उसके बाद पटवारा खाने की तरफ में आता हूँ। 6 सर्कल हैं, 1 पटवारी है और मैं खराज तहसीन भी पेश करता हूँ उस पटवारी को, उस तहसीलदार साहब को, उस नायब तहसीलदार को कि जो हमारी खिदमत के लिए आते हैं तो कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर मैं वो बात बताऊं तो खुदारा उधर आप ही जाकर देखें, बिजली का कनेक्शन नहीं है। परसों दौरा था और तहसीलदार साहब इस पंखे को हाथ वाले से वो इनके ऊपर एक बंदा ला रहा था, उनका भी मीटर कोई ले गए। बिजली वाले इधर बैठे हुए हैं, रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, मेरी इनसे भी रिक्वेस्ट है बिजली का मीटर उन्होंने लिखा है, लेकिन हमारे तहसील है, हमारे अफसर हैं, उनको फैसिलिटी तो कोई है नहीं है। उनको भी फैसिलिटी होनी चाहिए, हमें भी होनी चाहिए, उनको भी होनी चाहिए। तो खुदा रहा 6 पटवारी हैं, 1 पटवारी काम करता है, कभी वो पेशी पे जाता है, कभी उसकी शहादत होती है अदालत में, फिर भी मैं उसको खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूँ। अगर मैं ये बात न करूँ तो उसके साथ ज्यादती होगी। अतवार के दिन भी हमारा दफ्तर पटवारा खाना खुला होता है, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ महकमा माल को। और दूसरी बात, जनाब एसी साहब से मेरी ये पुरज़हर अपील है, शबीर साहब के दौर की मैं बात करूं तो उस वक्त जब वो आते थे, आने से एक दिन पहले इधर एक मैसेज करने कर देते थे कि आज मेरा दरबंद का दौरा है और लिहाजा आप डेमोसेल जो है उनको जमा करके एक जगह पे रखें। तो आज एसी साहब उधर ही इंशाल्लाह इस पर सब्मिशन करेंगे, क्योंकि इधर एक मैं आपको वो बताऊं, एक यतीम बच्चा जब उगी जाता है उधर जाता है बिलाल साहब के पास, जो क्लर्क है हमारे इधर बैठे हुए हैं, आगे एसी साहब कहीं काम से कहीं चेकिंग पे किसी जगह भी है, वो तो अफसर है, वो तो एक जगह पे नहीं होंगे। अगर वो दफ्तर में सीट पे मौजूद नहीं है तो बिलाल साहब उसका डिमिसल रख देंगे कि भाई 2 दिन के बाद आ जाओ। वो चेयरमैन साहब, कौंसलर साहबान, जिगर जितने भी यहाँ पे आए हुए बुजुर्ग हैं, मैं सबको अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद जमान है, इसी दराशनाए से मेरा ताल्लुक है, जनरल काउंसलर हूँ। तहसील दरबान में 3 यूसी हैं। दराशना इतनी पसमानदा यूसी है, वहाँ पे जीत रोड है, उस रोड पे गिदबगला से लेकर दरा तक कितनी स्लाइडिंग हुई है। जीप से बंदे उतर कर अपनी गाड़ी के टायर गुजारने के लिए मलबा हटा देते हैं और स्लाइडिंग 2 साल से पड़ी हुई है, उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस स्लाइडिंग को हटाकर वैसे भी चौक से जब गाड़ी पे सामान लादा जाता है, बंदूं को भी लादा जाता है, बैठाए नहीं जाता है। एसी रोड है, जब आगे मुश्किल में जाती है सब मस्तूरात को उतारा जाता है, बूढ़ों को उतारा जाता है, बच्चों को उतारा जाता है, वो सब पैदल चलते हैं। एसी रोड है, खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इस स्लाइडिंग को शेडों से हटाकर कुछ गुजारा हमारा हो जाए। दूसरी बात यह है, बिजली का कोई टाइम टेबल नहीं है आने जाने का, जब जी चाहा बंद कर ली, जब जी चाहा चला दी। देहातों में रीडिंग तो बिल्कुल होती ही नहीं है, साल हमारे पास कोई मीटर रीडर नहीं आता है, वैसे ही लमसम में बिल भेज। कब लगे सेक्शन को? ये सेक्शन पर रोड से निकालने से पहले लगा है। अभी रोड निकल गया, अभी क्या मसला? रोड कैसे
ठेकेदार ने सब जगह खराब कर दी, मतलब मालिकों को पैसे नहीं मिले। मालिकों को नहीं मिले। ये 2017 से हमारी कुछ पेंडिंग स्कीम है जिनको आज मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और ये वो स्कीम है हमने ये आपके भी नोटिस में है सर, ऐसी साहब डिप्टी कमिश्नर मानसरा के नोटिस में भी हैं और कमिश्नर हजारा उनके भी नोटिस में है। ये मेरे पास ये पूरी फाइल है और सबकी रिपोर्ट से मेरे पास लफ है। जो स्कीम है ये सबसे पहले पीसीसी रोड है शनाय पाइन, पैकेज नंबर 28, ये 1 मिलियन है। ये कॉन्ट्रैक्टर है कासिम खान। ये सर 2017 में सूबाई गवर्नमेंट ने ये स्कीम मेंशन की थी और इसका तकरीबन 90% काम हुआ है। तकरीबन 50-60 फुट अभी जो है ना वो काम रहता है, वो ठेकेदार चला गया सर। एक मसला ये है। दूसरा हमारी एक स्कीम है ये रिपेयरिंग ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम, पैकेज नंबर एडीपी नंबर 856, पैकेज नंबर 21, ये 1 मिलियन रुपीज़ है। ये भी 2017 में ये टीएमओ साहब ने एडवांस पेमेंट इशू की थी, तो ये साइट पे अभी तक कोई काम इसका नहीं हुआ। ये 2017 से ये स्कीम चल रही है सर। तीसरी जो है ये रिहेबिलिटेशन ऑफ शनाय टू लड़ी रोड, एडीपी नंबर 558, पैकेज नंबर 19, ये 1 मिलियन रुपीज़ है। ये भी 2017 की स्कीम है, 2022 एंड हो रहा है, अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। हैंड पंप है शनाय पहीन के, कॉन्ट्रैक्टर है इसका वकास अहमद तनोली बख्तियार, इनका ये सेल नंबर दिया है एडीपी नंबर 865 और पैकेज नंबर 20 था। ये 1 मिलियन रुपये की है। इस पे अभी तक भी कोई काम शुरू नहीं हुआ। अब इसके साथ ये 2020 में नवाब फरीद में 15 लाख रुपए रखे थे शनाय के लिए, पीसीसी रोड है। इसका ठेका जो दिया गया है ये मिस्टर सर्वर गोल एंड कंपनी, इसकी पेमेंट रिलीज हो गई है सर। ये ठेकेदारों को ये जितने भी जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि 50 लाख रुपए ये पेमेंट रिलीज हो गई। ये एडवांस पेमेंट ही है लोगों को, लेकिन नो वर्क डन स्टिल, मतलब कोई काम अभी तक साइट पे कोई काम नहीं हुआ सर। मसला ये कि ये कब तक ये सिस्टम होता रहेगा, क्योंकि हम एक हाईलैंड एरिया से बिलोंग करते हैं। शनाया बहुत बैकवर्ड एरिया है, हमारे पूरे तहसील दरबान में शनाया बहुत बैकवर्ड तहसील है। अब हमारी बैड लक ये है कि पहले तो हमें कोई फंड मिलता ही नहीं, जब अगर मिलता है वो आगे करप्शन की नजर हो जाता है सर। ये स्कीमें जो है ना, ये टीएमओ साहब ने आपको जो वापस रिपोर्ट जी वापता की रिक्वायर्ड जमीन है जी, जो पानी से फालतू है, उस तमाम जमीन पर कब्जा हो गया सर। वो पगडंडी यानी रस्तों के लिए वो जमीन छोड़ी गई, ये पूरी टाउनशिप के लिए, वो सारी पे चारों अतराफ से कब्जा कर लिया गया सर। उसके लिए पहले भी मैंने कई बार आवाज उठाई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। रिजर्वेयर जिसको कहते हैं वापटे की रिजर्वेयर जमीन 1565 उसका पैमाइश है सर, वो सारी जो है जितनी भी है वो सारी कब्जा हो चुकी है। तो आज के जो इंतजामात हैं ये आपकी इंतजामी नहीं है। आप किस चीज पे एतराज? जी सर, मुझे एतराज ये देखें सर, इसके लिए अगर आज टेंट सर्विस होनी चाहिए थी सर। आगे दूर से लोग बच के बैठते, इकट्ठे बैठते, कुछ उधर बैठे हैं, कुछ किसी को आवाज नहीं आ रही। अभी सारे आपके इर्द गिर्द जम हुए थे, कम से कम इनका एक तरीकार होता है सर, कुछ रूल रेगुलेशन होती है सर। ये तो आपकी भी तौहीन है सर। तो दूसरी बात ये सर, मसलों की जो बात है, मसाइल हमारे बहुत सारे हैं सर, लेकिन इनमें ज्यादातर जो मसाइल हैं सर वो आपसे ऊपर लेवल के हमारे एमपीए एमएलए लेवल के मसाइल हैं, उनको भी हम इधर बयान कर लेते हैं सर। तो वो फजूल है मेरे ख्याल में। जैसे वापडा को सर मेरे ख्याल में मिनिस्टर भी ठीक नहीं कर सकता, तो इधर हम जो भी बयान करेंगे वो फजूल है। मेरे असल मसला जो है, जो हमारे तहसीलदार साहब हैं सर, उनका एक दिन मुकर्रर है मेरे सामने जुमेरात सर। अगर वो एक दिन उनका मुकर्रर है, वो उस दिन को भी नहीं आते हैं सर, तो हमें कितना मसला होते हैं। इनको इस चीज का पाबंद किया जाए कि अगर जुमेरात को तूफान हो, आंधी हो, लेकिन अगर एक दिन है तो इनको काइंडली आना चाहिए। तो आपकी तो बात आपने अभी क्लियर कर लिया, आप आएंगे माशाल्लाह सर, थैंक यू। तो दूसरी बात ये आटे का हवाले से मैं कर रहा हूँ सर, आटे का हमारा खोटे का हमें कुछ पता नहीं। ये तहसील हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं, क्योंकि नए हैं, हम इन्हें अभी कुछ नहीं कहते। तो काइंडली इस चीज का पता लगाया जाए कि हमारा कोटा 800 बैग से 400 बैग से हमें पता चले सर। उसका काइंडली उनकी पूरी तफसील हमारे चेयरमैन साहब को दी जाए, ताकि इधर आए, हम
हम गिन के वो पहले तकसीम करें, ये ना हो कि 800 हमारा कोटा हो, यहाँ आके 500 तकसीम हो जाओ, 300 गायब हो सर। ये मैं जी सर वो ऐसे नहीं है, मीटिंग में जाने मेरे 2-4 घंटे वहाँ लगेंगे, लेकिन मैं इस वीकेंड पे भी अपना तो आप साहब इधर था, मैं इधर था, मैं घर भी नहीं गया। ठीक है, नंबर मेरा सारी दुनिया के पास है, मेरे स्टाफ का है। अगर कोई आदमी ये कहता है जी कि उसके दफ्तर में जाते हैं तो उस आदमी तक अप्रोच नहीं है, तो ये बात मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार हूँ। मेरे दफ्तर में तो ये कुछ चिट्ठियाँ देगी तो 2-2 घंटे किसी को बैठना नहीं पड़ता पाए। कोई भी मसला हो आप डायरेक्ट मुझसे रब्ता करें, कोई ऐसी बात नहीं है जी कि बाकी ये हमारा स्टाफ ही यहाँ पे होता है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको पता है कि जो यहाँ पे हल होने वाली नहीं है। 2-3 मिसालें आपने देख ली हैं, जो अहम बातें थी उस पर हमने पहले से कार्रवाई शामदीद, क्योंकि पहली बार तहसील टीएमए, मैं तो ये कहूँगा तहसील दरबंद और टीएमए के दफ्तर में पहली बार आके आपकी ये खुली कचहरी लगी है, तो ये भी इज्जत आप लोगों को जाती है, क्योंकि आज से पहले तो मेरे हाल में इस तरह हुआ नहीं है। बाकी आया शकील भाई ने बात किया, अब सारी बातों की थोड़ा थोड़ा करके डिटेल में दे देता हूँ। तो कि यहाँ पे इंतजामात ठीक नहीं थे। शकील भाई, ये रेंट की बिल्डिंग ली हुई है हमने, हम इस पे ऊपर टेंट लगा रहे थे, लेकिन जब मैंने आके देखा तो वहाँ पे बादल छाए हुए थे। मैंने कहा अगर वो लगा लेंगे तो इसके अंदर हवस बन जाएगी, आवाज नहीं आएगी। इसलिए बकाया हमारे पास हाल तो कोई है नहीं कि जिसके अंदर हम बिठा के वो करें। उसके लिए आप ही मेहनत करें, हम भी करेंगे, साथ में दुआएं भी करें। अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए कि हमें हाल मिल जाए जहाँ पे आराम के साथ एसी लगा हुआ और आप बैठ के बातें करें। उसके बाद बातें तो सारी हो गई, मेरे पास ये लिखी हुई थी ये सारी बातें, मैं इस पे काम भी कर रहा हूँ, एसी साहब भी बैठे हुए हैं, इनसे भी होती रहती है, लेकिन आप लोगों ने सारी बातें कर ली हैं। अब मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी डिटेल में जाऊं या बात करूं। आटे की बात भी आपने कर ली है, तो मेरी आज सुबह भी उनसे बात हुई थी। जैसे एसी साहब ने कहा है कि आज अप्रूवल देंगे डीसी साहब, उसके बाद पता चलेगा कि कितना वो है तहसील के लिए या किस टाइम पे आएगा, कितना आटा आएगा। तो ये इशू है सर यहाँ पर, क्योंकि ये 8-10 दिन से मुझे बार बार लोग ये कह रहे हैं कि आटा आता है लेकिन पता नहीं चलता किधर जाता है। तो उसके लिए हमें इन्फॉर्म होना चाहिए कि ये आटा आया है, 1 बैग आता है या 100 आता है। वो कोटा तो आपके भी ना अख्तियार में ना कि आप बढ़ाएंगे, जो आता है वो मकाम पे पहुंचना चाहिए। तो उसके लिए एसी साहब ने आपको जवाब दे दिए। उसके बाद सबसे मेन बात मंशियात की जो ये की है, मैंने अभी मेरे पास 8 से 10 एप्लीकेशनें आई हुई हैं इस मंशियात के हवाले से। उनमें से एक मैंने SHO साहब को दे दी है, क्योंकि उनका काम है कि यहाँ पे वो कर रहे हैं, तो उनके पास चली गई है। तो उस पे मैं ये अर्ज करूंगा कि मंशियात सिगरेट पीने वाले को नहीं कहते। एक बंदा चर्स पी रहा है, मैं तो ये समझूंगा, मैंने SHO साहब को कहा भी है, मैं एसी साहब भी बैठे हुए, मैं खोल के बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये कोई वो नहीं है। एक बंदा लगा हुआ है उसको हम नहीं रोक सकते हैं, वो लग गए ठीक है, लेकिन जो पीछे आ रहे हैं उनको हम बचा सकते हैं। वो हम पे जिम्मेदारी भी है, हमारा फर्ज भी है, और उसको इंशाल्लाह हम निभाएंगे भी। तो अभी तफसीलन बात की है कि उसका हाल यही है कि इस इलाके में, इस तहसील में जो डीलर हैं, जो मंशियात फरोख्त करते हैं, सबको पता है दरबंद में ओपन मंशियात फरोश हो रहे। मेरे पास दिन में सर कोई 20 बंदा आता है यहाँ पे आके कहता है कि यार ये मामलात आपकी आंखों के सामने लगे हुए हैं और आप लोगों ने आंखों पे हाथ रखे हुए, ठीक है। और उसके बाद एप्लीकेशन दी है, उनमें से मैंने SHO साहब को दे भी दी है। इंशाल्लाह उम्मीद भी है कि जो डीलर, मैं सर से फिर ये कहूंगा, DSP साहब भी बैठे हैं, जो बंदा सिगरेट पी रहा है उसको हमें उठाने से कोई फायदा नहीं हो। जो बंदा बेच रहा है, जो नई नस्ल को दे रहा है, जब हम उसको उठाएंगे तो इंशाल्लाह हमारे ये मामलात हल होंगे। और SHO साहब, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आप सही काम करेंगे, चाहे वो कोई बंदा भी हो, उसके साथ किसी की भी सपोर्ट हो, उसके साथ कोई मामलात भी हो, इंशाल्लाह ये भाई आपके साथ खड़ा होगा। आप जायज पे होंगे, आग पे होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ, मुझे सारे मामलात का पता है, बताने की जरूरत नहीं है। आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। ये आवाम दरबंद की आवाम है, आपने देखा होगा जो SHO यहाँ से गया है, सही काम करके गया है, लोगों ने उसको इज्जत दी है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, आप हमारे भाई हैं, ये आवाम आपको जरूर इज्जत देगी, और लेकिन आप सही काम करेंगे तो इस बात पे आपको फिल फॉर एक्शन लेना चाहिए। जहाँ पे हमारे बलदियाती मेम्बरान खड़े हैं, इनकी अगर जरूरत आपको पेश आएगी इस काम के लिए, नासूर है, हम आपका साथ इंशाल्लाह जरूर देंगे। उसके बाद एसी साहब ने खुद ही कह दिया है कि मैं इंशाल्लाह एक दिन दरबंद को दूंगा। सर हक भी है, फर्ज भी है, DSP साहब भी हैं,
सर आपसे भी मेरी गुजारिश है, आपका भी फर्ज भी है, हक भी है, क्योंकि यहाँ पे आना जाना लोगों के लिए मसाइल होते हैं, गरीब आवाम है। जो काम यहाँ पे हमसे हो सकते हैं हम मिल के करेंगे, क्योंकि मेरी तहसील मेरी नहीं है सर, आप लोगों की भी है, इन सब की आपको पता है कि किस मामलात से गुजरे हैं। तो इसके लिए आपके तावन की इंतहाई ज़रूरत होगी हमें, क्योंकि हम जब मिल के काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि उसके असरात ज़रूर नज़र आएंगे। लड़ने से और एक दूसरे के अख्तियार बांटने से हम मेरे ख्याल में आगे नहीं जा सकते। तो जहाँ पे आपकी ज़रूरत होगी मुझे यकीन है आप ज़रूर इंशाअल्लाह हमारे साथ ताउन करेंगे। बकाया हमारे पास यहाँ पे सर वेटनरी का डॉक्टर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इशू वो भी एप्लीकेशन मेरे पास पड़ी हुई हैं, क्योंकि लोगों के जो उस पे आ रहे हैं, क्योंकि उसको होना बहुत ज़रूरी है। वेटनरी का हमारे पास डॉक्टर यहाँ पर नहीं है, उसके लिए भी आप कोशिश करें कि अल्लाह करे कि हमारे पास वो भी आ जाए। तो उसके साथ साथ में आटे की बात हो गई सर, हमारी हॉस्पिटल का मसला है सर, डॉक्टर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मतलब कि सिर्फ इमरजेंसी है 24 घंटे ना सर। तो मैं ये चाहता हूँ कि आवाम ये चाहिए कि इसकी ओपीडी 24 घंटे हो जाए, ताकि जो लोग बार बंदा प्राइवेट चेक नहीं करवा सकते, आगे मामलात भी इस तरह के हैं, उस पर सर आप ही अपनी कोई रोल अदा करेंगे इंशाल्लाह। हम भी कोशिश करेंगे, तो इसको हम कोशिश करेंगे ताकि ये 24 घंटे हो जाए। उसके बाद मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, गर्मी है, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करता हूँ, क्योंकि अभी जितनी जिम्मेदारियाँ आप लोगों पर है इतनी मुझ पर भी है। तो हम बातें करने के बजाय इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि मामलात हमारे हल हो जाएं। तो इसके साथ ही मैं ख़त्म करता हूँ। बकाया जो बात भी होगी मैं एसी साहब और डीएसपी साहब ये बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनके साथ बैठ के बात करेंगे। बिजली का मामला इकबाल साहब बैठे हुए हैं, कोले शोले लगा रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा, लेकिन अर्ज ये होगी कि प्लीज़ थोड़ा सा हमारे साथ वो कर लें। आप कह रहे हैं 6 घंटे इकबाल साहब, मैं खुद यहाँ पे रहता हूँ, 6 घंटे लोड शेडिंग नहीं होती है। कम से कम 15 से 16 घंटे लोड शेडिंग होती है यहाँ दरबंद के यहाँ। मैं मतलब भाईबंदी वाली बात आपसे कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ आपको प्रेशर में ला रहा हूँ, जो जेन्युइन बात है। 6 घंटे नहीं है, कम से कम 16 घंटे। और दूसरी बात ट्रांसफार्मर की है, ये महकमे की ड्यूटी है, महकमा करेगा इस काम को, लेकिन उसमें हमारी गलतियां भी है। अभी मेरे भाई ने कहा है कि मेरे दोस्त ने दिए वो ट्रांसफार्मर, मैं आज ओपन आपको कह रहा हूँ कि वो मैंने सही करवाया था। मुझे रात 11 बजे कॉल आई थी, ये जो गाड़ वाला ट्रांसफार्मर है, 11 बजे मैंने अल्लाह इनका भला करे कि रात को भी मैं कॉल करता हूं तो ये चले जाते हैं। वो ट्रांसफार्मर मुझे एसडीओ साहब ने कहा था कि भाई अगर ये खराब होगा मैं आपको चेंज करके दूंगा, ठीक है। अब मैं मैकेनिक भेज रहा हूं, अगर उससे ठीक ना हुआ, अब हम अपने सियासी उसके लिए थोड़ा सा कर लेते हैं, बीच में 5-6 हज़ार रुपए दे के फिर हम आके यहाँ पे चढ़ जाते हैं कि फलां बंदे ने नहीं दिया, फलां ने की है, ठीक है। उसकी जेन्युइन बात यह है कि वो ट्रांसफार्मर मुझे एसडीओ ने कहा था कि मैं आपको चेंज करके दूंगा, अभी मैकेनिक लगा हुआ है उस पर। अब वो देखेगा, वो ठीक होने वाला हुआ तो वो यहाँ पे करेगा, ना होने वाला हुआ तो उसने कहा है। अब मुझे पता ही नहीं है, इलाके को पता ही नहीं है आप लोगों ने 5,000 क्यों दिए। मैं कहता हूँ अगर मैं जिम्मेदार हूँ, अगर ये नहीं करेंगे मैं अपनी जेब से पैसे दूंगा, मैं जानू ये जानू, ठीक है। लेकिन आप एक जगह पे तो पहुंचाए उस बात को। अब मैं उनके साथ लड़ रहा हूँ कि मुझे ट्रांसफार्मर चाहिए, आप जाके 5,000 रुपए बंदे को दे दें, हाँ ये लें भाई आपकी गाड़ी का किराया। अब ये इलेक्शन खत्म हो गए, मुझे 4 साल कोई नहीं हटा सकते, ठीक है। लेकिन कम से कम इनका काम है, ये आके करेंगे ये काम, ये ना करेंगे मैं अपनी जेब से दूंगा, इनसे मैं लूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी। उसके बाद ये नीचे ट्रांसफार्मर खराब हुआ है मस्जिद के पास, 12 बजे मीर अफजल को मैंने भेजा है रात को, ठीक है, उसने जाके किया है। अब उसके बाद फिर उस पर इशू बनाया कि ये, अब मुझे एक बंदा एसडीओ कह रहा है कि मैं आपको गवर्नमेंट की चीज सर फ्री दे रहा हूँ, तो मैं मतलब अपनी जेब से तो नहीं लगा सकता उसको, इनका काम है, ये हमसे बिल लेते हैं, ये काम करेंगे। अब बंदा उठ के जाए, वो कहे कि ये लो 2,000 रुपए इसको कर लो, तो फिर उसमें मैं तो महकमे, जहाँ पे महकमे का दफा करना पड़ेगा, जिस बात पे ये जायज पे होंगे मैं कहूंगा कि आप भाई इस पे जायज पे हो। जहाँ पर आप कोताहियां करेंगे, लोगों के साथ ज्यादती करेंगे, इंशाल्लाह आप मुझे बोलता हुआ देखेंगे, और मैं फिर सड़कें बंद नहीं करूंगा। फिर मैं इकबाल साहब, हाँ, तो बकाया आप समझदार बंदे हैं, अच्छे बंदे हैं, ये महकमा है, ट्रांसफार्मर है, ये ना इस पे मैं नाम निकाल सकता हूँ, मेरी सिर्फ ये है कि मेरी जिम्मेदारी है, मेरी तहसील है, कोई वो होता है तो मैं आप लोगों को पकड़ूंगा, सर ये काम हो गया, ये करें, आप बिल लेते हैं, आपका काम है ट्रांसफार्मर चेंज करना।
आप उसको करेंगे। अगर जिस दिन आप नहीं करेंगे फिर मैं करवाऊंगा उसको। डीएसपी साहब फिर आप बीच में नहीं आएंगे तो बीच में हम आएंगे, बीच में आएंगे फिर मैं जिम्मेदारी भी डालता हूं। कोई और महकमा है नहीं जो आवाम हम वक्त बरसरे पैकार होते हैं, इनके साथ हमारा राब्ता भी होता है। और फिर भी अगर किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन हो, किसी ने कोई अपनी इन्फॉर्मेशन देनी हो, कोई बात करनी हो, मेरा नंबर होता है, एसटीओ साहब का नंबर होता है। आप बिल्कुल आपकी बात को सीक्रेट रखा जाएगा, राज में रखा जाएगा, किसी का नाम आश्कारा नहीं किया जाएगा, किसी का नाम जाहिर नहीं किया जाएगा। किसी वक्त भी आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और इंशाल्लाह कार्रवाई भी होगी और काम होता हुआ आप देखेंगे। और मैं जब से इधर हूं इंशाल्लाह जिस महकमे के भी कोई काम है, मैं ये चाहता हूं कि कोई आदमी उगी ना आए, हमारे पास ना आए, हम खुद इधर आए। और जब भी कोई मामला हुआ, पानी का मामला हुआ, बिजली का मामला हुआ या दीगर कोई मामला हुआ, इंशाल्लाह मैं खुद यहाँ पे आता हूँ, आप लोगों के साथ बैठता हूँ, आपकी बात सुनता हूँ और आपकी मुशावरत के साथ हम आगे चलते हैं। तो इंशाल्लाह मनशियात की बात भी सामने आई है तो इस पर इंशाल्लाह आपको कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। और अगर किसी के पास भी कोई मुफीद इन्फॉर्मेशन है, मेरा नंबर हर वक्त ऑन होता है और हर किसी के पास होना चाहिए। जो भी कोई इन्फॉर्मेशन दे इंशाल्लाह हम हाजिर हैं, कार्रवाई आ जाएगा। पीने वालों को भी कहा जाएगा, मैं क्लियर कर देता हूँ, लेकिन उनको उतना जुर्म कहा जाएगा जो उनसे निकलेगी। ये नहीं एक आदमी 5,000 रुपये की चर्च कहीं से लेता है और दरिया के किनारे 10 आदमी को टोला लगा के बैठा रहता है। हम जाके उनको पकड़ते हैं, एक या 2 सिगरेट निकलती है, यार ये तो पीने वाले हैं, तो वो पीने वाले से ही हम फिर बेचने वाले तक पहुंचते हैं। यही तरीका होता है। उसको उठा के लेके जाएंगे, उसके साथ लाड प्यार करेंगे, उससे ही हम पूछेंगे किधर से लाई है, उसको मुजरिम बना के उसके बयान में हम असला आदमी तक पहुंचेंगे। यही तरीकाकार होता है। पीने वालों को भी ये फोरम पे उनको सपोर्ट मतलब की जा रही है, वो तो बिल्कुल मजलूम है। वो तो किसी को मत छोड़ो। जी हाँ, न पीने वालों को छोड़ेंगे न बेचने वालों को छोड़ेंगे। ठीक है, ये एक फैशन तो है नहीं है, सिगरेट खाली तो है नहीं कि वो ठीक है, जो लोग पीने वाले हैं हमें उनके साथ हमदर्दी है कि वो इस बुराई में लग गए हैं। क्योंकि जिस घर में एक नशे वाला हो तो वो उस घर को ही पता होता है। अगर दरबंद में एक मंशियात पीने वाला तो समझे एक चोर है। उस चोर से न किसी की गाड़ी महफूज है, न किसी के घर महफूज है, क्योंकि उसका नशा पूरा करना है। और ये तो गरीब इलाका है, यहाँ पर कारखाने फैक्ट्रियाँ वो तो है नहीं है कि जहाँ पर काम करेंगे लोग, पसमानदा सा एरिया है, तो वो क्या करेगा, चोरी ही करेगा। तो मेरा तो तकरीबन थोड़े दिन हुए, इंशाल्लाह बड़े दावे नहीं करते, आते वाले वक्त बताएगा। थोड़ा सा आवाम से भी गिला है कि वो अभी तक मेरे पास कोई ऐसा आदमी नहीं आया जो मुझे आके बताए, हम पर एतमाद करे, यार जी फलाना आदमी है ये काम कर रहा है। तो मैं इंतजार में हूँ कि कौन पुलिस पे एतमाद करता है और इंशाल्लाह आपके एतमाद को हम ठेस नहीं पहुंचाएंगे, ये वक्त बताएगा इंशाल्लाह। और पीने वालों से भी मेरी ये दरख्वास्त समझ लें कि मेरे सामने ना आए, ओपनली किसी को पीने की इजाजत भी नहीं और बेचने की तो है ही नहीं। ठीक है, तहसील मेयर साहब ने कल भी मेरे साथ इस बारे में मीटिंग की है, आज भी कहा है, दरखास्तें भी मुझे दी हैं, वो भी इस मामले में बड़ा परेशान है, यार जी चीज़ फैल रही है। और बस ये SHO दरबंद या मेरी जिम्मेदारी में अवलीन जिम्मेदारी में आता है हर घर की इज्जत का ख्याल रखना, हर आदमी का ख्याल रखना, हर आदमी की सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना, ये पुलिस का फर्ज है और ये इंशाल्लाह हम करेंगे। बाकी आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि कोई सिर्फ मंशियात फरोख्त नहीं, और भी कोई क्रिमिनल आदमी आपको